السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر مجاہد مرزا اور پڑھ رہا ہوں اپنی کتاب خود نوشت پریشاں سا پریشاں کے 11ویں قسط آپ کے لیے۔ بھائی فرید قوی الجثہ شخص تھے۔ ایک بار یاسمین پھولوں کا ایک بہت پھیلا ہوا پودا کہیں پہ بھائی شعیب کو بھا گیا تھا۔ ان کی خواہش کی تکمیل کے لیے فرید بھائی نے ایک جھٹکے سے پورا پودا جڑوں سمیت زمین سے اکھاڑ لیا تھا۔ یہ پودا بعد میں ہمارے صحن میں گاڑا گیا تھا اور بہت دیر تک پھول دیتا رہا تھا۔ فرید کی والدہ بھی بہت دلچسپ خاتون تھیں، گوری چٹی گلگوسنی، میری ماں سے اکثر ملنے آیا کرتی تھیں۔ باوجود قادیانی ہونے کے ان کی مذہبی گفتگو بڑے ذوق سے سنا کرتی تھیں۔ ایک بار اماں فتنہ دجال کے بارے میں بتا رہی تھیں۔ وہ سنتے سنتے ایک رخت گویا ہوئی، دجال تو آ گیا ہے، کون اور کہاں؟ والدہ نے استعجاب سے پوچھا تھا۔ انجن، انہوں نے انجن کہا تھا، انجن، انہوں نے اپنے پنجابی زدہ لہجے میں جواب دیا تھا۔ توجہ یہ بدل تھی، اس کی ایک ہی آنکھ ہوتی ہے، یعنی مین لائٹ۔ والدہ نے ہنستے ہوئے کہا تھا، انجن تو دنیا میں بہت سارے ہیں۔ ان کا استدلال یہ تھا کہ وہ سارے اس کے بچے ہیں۔ سادگی کے ایسے مظاہرے ذرائع ابلاغ کے فروغ کے بعد شاید ہی رہ گئے ہوں گے۔ خورشید بھائی کے گھر والوں میں سے میں نے کبھی کسی کو اپنے گھر میں نہیں دیکھا۔ ممکن ہے کبھی آئے بھی ہوں، لیکن ان کا آنا اگر اس قدر کم تھا تو مجھے بھلا کیسے یاد رہ جاتا۔ مجھے ایک بار خواب آیا کہ چوک کے سامنے دور پتلی اینٹوں والی کئی منزلہ حویلی جس میں بھائی صاحب کی محبوبہ رہتی تھی، اس کی تیسری منزل کی ایک کھڑکی میں وہ بیوی بیٹھی ہیں۔ انہوں نے سلمہ ستارے سے مزین سبز جوڑا زیب تن کیا ہوا ہے۔ وہ اداس ہے، ان کا بیاہ ہو گیا ہے۔ میرا یہ خواب خاصا سچا تھا۔ اسی رات جلد بازی میں ان کا بیاہ کر کے انہیں اپنے دولہا کے ہمراہ کراچی بھیج دیا گیا تھا اور نکاح کے وقت انہوں نے سرخ جوڑے کے بجائے سبز کپڑے ہی پہنے تھے۔ ان سے بڑے بھائی مرزا محمد شمیم اور بڑی بہن آپا شکیلہ کو میں بہت دیر تک غیر سا ہی سمجھتا رہا تھا، کیونکہ بہن میری پیدائش سے 1 سال بعد بیاہ کر لاہور سے دار گئی تھیں اور بھائی صاحب رہتے ہی باہر تھے۔ بچپن کے کچھ اور یاد رہ جانے والے واقعات میں ایک بار ہم لاہور جاتے ہوئے منٹگومری میں رکے تھے۔ والدہ کے ایک امزاد مرزا سعید صاحب وہاں رہتے تھے۔ ہم جب ان کے گھر داخل ہوئے تھے تو مجھے پیشاب کی شدید حاجت تھی اور میں جاتے ہی رفع کے لیے ان کے بیت الخلاء میں داخل ہو گیا تھا۔ مجھے ماموں سعید بس بندر ٹوپی پہنے ہوئے سفید خشخشی داڑھی والے شخص کے طور پر ہی یاد رہے ہیں۔ اس کے بعد کبھی ان کے گھر جانا نہیں ہوا تھا۔ سنا ہے وہ غضب کے خطاط تھے۔ دوسرا واقعہ لائل پور جانے کا یاد ہے، جہاں بھائی شمیم نشاط ٹیکسٹائل ملز میں بطور شفٹ انچارج ملازم تھے اور شہر سے باہر واقع نشاط ملز کالونی کے 2 چھوٹے کمروں اور ایک برآمدے اور چھوٹے سے صحن والے کوارٹر میں رہائش پذیر تھے۔ ان کا چھوٹا بیٹا نعیم گھٹنوں چلنا سیکھ رہا تھا، لیکن وہ گھٹنوں کے بجائے پیٹ کے بل کیڑے کی طرح رنگ کر آگے بڑھتا تھا۔ وہ گورے رنگ کا پیارا سا بچہ تھا۔ اس کے ماں باپ اسے پیار سے چیکو کہتے تھے، لیکن میں نے اس کو کوکو پکارنا شروع کر دیا تھا۔ ہم چند روز ہی وہاں رہے تھے۔ والدہ گھر کی تنگی سے خوش نہیں تھیں۔ مجھے اویس کا ہمراہ ہونا بالکل یاد نہیں ہے، البتہ یہی یاد ہے کہ ایک بار بھائی صاحب مجھے کارخانے کے اندر لے گئے تھے۔ وہاں روئی اڑ رہی تھی، عجیب سی بساط آ رہی تھی اور کارخانے کے اندر کرکھوں کے چلنے سے کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی تھی اور شدید گرمی اور حبس تھا۔ مجھے بھائی کے اس قسم کے کام میں مصروف ہونا بالکل بھی نہیں بھایا تھا۔ تیسرا واقعہ یہ کہ میں ایک بار پٹھان کی دکان سے گولیاں لینے جا رہا تھا اور اویس میرے پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ میں نے 2 بار اسے کہا کہ میرے پیچھے نہ آؤ۔ وہ نہ رکا تو میں نے اسے آخری وارننگ دی کہ اگر میرے پیچھے آؤ گے تو میں تمہیں گھوڑے کے پیچھے پھینک دوں گا، اور پھر میں اسے دونوں بازوؤں کے بیچ لے کر عظیم الدین کے گھر کے آگے لوہاروں کی دکانوں کے آخری سرے پر بندھے گھوڑے کی پشت تک لے گیا تھا۔ میں اسے صرف ڈرانا چاہتا تھا، مگر گھوڑے نے ایک لخت اس کے سینے پہ دلہتی جڑ دی تھی۔ اس کی آنکھیں اوپر کو چڑھ گئی تھیں اور وہ بے ہوش ہو گیا تھا۔ لوگ بھاگ کر آ گئے تھے، اس کے سینے کی مالش کر رہے تھے اور پانی کے چھینٹے دے رہے تھے۔ میں بہت ڈر گیا تھا اور بری طرح رونے لگ گیا تھا۔ پھر شکر ہے اس نے آنکھیں کھول دی تھیں۔ چوتھا واقعہ وہ ہے جس کی یاد سے اب بھی میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور پیڑوں میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ میری فتنہ سازی کا واقعہ ہے۔ میں اس وقت شاید 2ری یا تیسری کلاس میں تھا۔
ये सानहा मेरे छोटे भाई अवैस भतीजे नदीम के साथ इकट्ठे ही पेश आया था। जाहिर है मैं इन दोनों से बड़ा था, इसलिए इस उस्ताद को सहने की पहली बारी मेरी ही रही होगी। मुझे याद है सहन में गोल फ्रेम की ऐनक वाला जाजू नाई बैठा था और उसके सामने राख बिखरी हुई थी और वो उस तरह तेज कर रहा था। मैं डरे हुए मुर्गे की तरह एक कोने में लगा हुआ था कि भाई शमीम एक हौलनाक किस्म की हंसी के साथ मेरी तरफ बढ़े। मैं थोड़ा सा इधर उधर भागा था और उन्होंने एक ही कुलांच भर के मुझे बाजू में भरकर हवा में बुलंद कर लिया था। उसके बाद एक कच की आवाज़ आई और मेरी चीख। वो दर्द और वो ड्रामा भुलाए नहीं भूलता और मैं लाशौरी तौर पर इस भाई के खिलाफ हो गया था। हमें बघार की छन से दूर दूसरे शहर में रखा जाता था। बाकी दोनों बच्चे तो 5-6 रोज़ में ही सेहतियाब हो गए थे और भागने दौड़ने लगे थे, लेकिन मेरे जख्म में इन्फेक्शन हो गई थी। जब जाजू नाई मरहम की पट्टी तब्दील करने आता था तो मेरी रूह फना हो जाती थी। एक बार तो मेरी भतीजी नुसा शमीम ने मेरी चीखों को आकर दुखी होकर झाड़ू से जाजू नाई की पिटाई शुरू कर दी थी। वो तब बमुश्किल 4 बरस की थी। जब मैं चौथी जमात में था तो मुझे पता नहीं क्या बीमारी हो गई थी। मैं चलते चलते पेट और गला पकड़ के ज़मीन पर उकड़ूं बैठ जाता था और मुंह खोल देता था। मेरे मुंह से मुकद्दर पानी प्रणाली की तरह बहने लगता और फिर तबीयत संभल जाती थी। पहले तो खूब कला गाँव ज़ुबान किस्म की चीज़ों से यह आज़ा रफ़ा करने की साई की गई थी, लेकिन कोई भी वाक़ा न होने की बिना पर मेरी माँ मुझे अलीपुर के वाहिद MBBS प्राइवेट प्रैक्टिशनर डॉक्टर काजी इकबाल साहब के पास लेकर गई थी। उन्होंने कहा था कि टाइफाइड बिगड़ गया है, 60 टीके लगेंगे और इतने पैसे बनेंगे। मेरी माँ ने कहा था डॉक्टर साहब आप इलाज करें, पैसे तो जो लगते हैं सो लगेंगे ही, लेकिन उन 60 टीकों से भी जिसके पैसे डॉक्टर साहब के नज़दीक ज़्यादा अहम थे, मेरी तबीयत संभलने के बजाय और ही ख़राब हो गई थी। मेरी माँ मुझे दिखाने के लिए मुल्तान लेकर गई थी और हमने रात मुमताज़ाबाद में शेख मजीद के यहाँ गुजारी थी। मुल्तान के डॉक्टरों से भी मेरी माँ की तसल्ली नहीं हुई तो वो मुझे लाहौर ले गई थी। मामू के घर के सामने जेल रोड से 4 नंबर ओमनी बस चला करती थी या तांगे थे, टैक्सियाँ ना होने के बराबर थीं। मेरी माँ बेचारी मुझे लेकर हर रोज़ अस्पताल जाती थी, मेरे टेस्टों के लिए इधर उधर भागती फिरती थी। एक बार खून की आजमाइश के लिए नर्स ने खून निकाला था और कहा 2 सीसी। वालदा बाहर थी। मैंने आकर बता दिया कि मेरा 2 शीशी खून निकाल लिया है। मेरी माँ तो हौल खा गई, उनसे लड़ पड़ी कि इतने छोटे बच्चे का 2 शीशी खून निकालते तुम लोगों को शर्म नहीं आती। और आखिर इन लोगों ने बड़ी मुश्किल से मेरी माँ की तसल्ली करवाई थी। वहीं मेरे ज़िंदगी में पहली बार स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ था। बिलाखिर वालदा ने मामू के तावन से मुझे भी अस्पताल के सामने बच्चों के माहिर डॉक्टर अख्तर को दिखाया था, जिनकी तशख़ीस के मुताबिक अद्वियात ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने के सबब और ज़्यादा मुनासिब ग़िज़ा न देने के सबब मामला बिगड़ गया था। उनके नुस्खे के साथ मेरे लिए हर रोज़ एक छोटी सी हंडिया में बग़ैर सुरख मिर्चों के कीमा या बकरी का गोश्त पकता था। मुझे हर रोज़ मक्खन के टीके और अंडे खाने के लिए दिए जाते थे और इस तरह 2-3 माह में ही मैं ठीक हो गया था, लेकिन मेरा निज़ाम सारी उम्र के लिए ही खासा ख़राब हो चुका था। मैं बचपन से ही मेरे ख्याल में इनकलाबी था। वालदा को सब बेबे कहा करते थे। मुझे ये लफ्ज़ एक तो गैर मुहज़्ज़बाना सा लगता था, दूसरे इस लफ्ज़ से मुझे अपनी माँ ज़्यादा बूढ़ी महसूस होती थी। मैंने उन्हें अम्मा कहना शुरू कर दिया था और बिलाखिर 10-12 साल में सभी बहन भाई उन्हें अम्मा ही कहने लगे थे, मगर साथ ही कभी कभार बेबे भी इस्तेमाल करते थे। मेरी वालदा कैथल ज़िला करनाल की रहने वाली थी, जहाँ उनके वालिद यानी मेरे नाना मौलाना मौलवी शमसुल इस्लाम ने रज़िया सुल्ताना के ज़माने की वीरान जामे मस्जिद को आबाद करके वहाँ फ़रोग़ इस्लाम की दाव बेल डाली थी। कैथल के अक्सर बासी क़याम पाकिस्तान के बाद डेरा गाज़ी खां में आबाद हुए थे। इस ज़माने में अलीपुर से गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट की बस डेरा गाज़ी खां भी जाया करती थी। वहाँ अम्मा की बचपन की सहेलियाँ भी थीं और वहाँ अम्मा की आओ भगत शहर के सरबराह और मजहबी शख्स की बेटी होने के हवाले से बहुत ही ज़्यादा हुआ करती थी। कैथल से ताल्लुक़ रखने वाले हर मर्द को हम मामू और हर औरत को मासी कहा करते थे। साल में एक बार वालदा हमें लेकर वहाँ ज़रूर जाया करती थी। वहाँ हमारा क़याम मासी हमीदा के घर होता था, इसे मासी मीदा कहते थे। वो बेवा या मुतलक़ा थी। उनकी 2 बेटियाँ खुशनुदा और कालो, जिसे मैं बाजी कालो कहा करता था, और जमीला थीं, और 2 बेटे खुर्शीद और महमूद थे। महमूद को हम मुद्दा कहते थे क्योंकि वो मेरा हम उम्र था। मासी का बाप भी था जिसे हम नाना कहते थे। वो एक हाथ रेड़ी पे पल्लेदारी किया करता था। बहुत ही इज़्ज़त नफ्स वाला शख्स था।
मासी के घर बाहर 2 कोठरियों में से एक में रहा करता था। आवाज़ देकर खाना ले लेता था और बर्तन दरवाजे से ही वापस कर जाता था। मासी की एक बहन ब्लॉक की दूसरी गली की एक बड़ी गली में रहती थी। उसे हम मासी सीदो कहते थे। ग़ालिबन उनका नाम रशीदा होगा। वो शेख मोहम्मद रफ़ीक ताजिर चरब की घरवाली थी। उनकी 3-4 या ग़ालिबन 5 बेटियां थीं, जिनमें से 2 के नाम नुसरत उर्फ नुच्छो और सुल्ताना उर्फ तानी थे। लड़कों के नाम शफीक चिकन, बिल्ला, शमीम बोरा और छोटे का नाम लियाकत याको था। नुसरत को हम बाजी नुच्छो कहते थे। बाकी सब लड़कियों को उनके उर्फ से पुकारते थे। उनके घर में खाम खालों के ढेर होते थे और लड़कियां सहन में खालें बिछाकर उन पर नमक मला करती थीं। भूख की वजह से उनके घर ज़्यादा देर तक नहीं ठहरा जा सकता था। मासी सीदो का एक बेटा मल्ला भी था, जो सबसे मुख्तलिफ तवील क़ामत, सेहतमंद, खूबसूरत और मगरूर मर्द था। वो घर में नहीं रहता था। नानी की कोठरी के ऊपर एक चौबारे में रहता था। उसके एक कान में सोने की नत्ती होती थी और ज़्यादा बातचीत नहीं करता था। नानी की कोठरी की बगल वाली कोठरी में उसका उसी तरह का मगरूर और जसीम सफ़ेद रंग का बैल हुआ करता था, जिसको एक रेहड़ी में जोत कर चलाया जाता था। बाद में खुशनुदा की शादी उसी से हुई थी। मासी मीदा वैसे तो खुशखलक थी, लेकिन जब लड़ने पर आती थी सबके हवास उड़ा दिया करती थी। अपनी बेटी जमीला की खूब ठुकाई करती थी। उनके मकान के पिछले हिस्से की गली में उनके कोई रिश्तेदार मुंशी मजीद रहा करते थे, जिनकी 2 बेटियां राशिदा और बेगा थीं। मुझे बचपन में अच्छी लगने वाली लड़कियों में से बेगा भी एक थी। ग़ालिबन उनका एक बेटा भी था, जिसका नाम लालू था। उनकी बीवी भी थी, लेकिन उनकी ज़्यादा मासी मीदा से नहीं बनती थी। उन घरों में हमें बेगानगी का कतई कोई एहसास नहीं होता था। दूर के ब्लॉक में रोहतक हिसार गुड्स ट्रांसपोर्ट वालों में बोबो अन्नो यानी अनवरी और उनकी बहन सिद्धू और उनकी वालदा कौंसी के यहाँ भी अम्मा को घर का एहसास होता था, लेकिन उनके घर हम ठहरते नहीं थे। एक और घर जिनके यहाँ हम वालदा के हमरा जाया करते थे, वो तार बाबू का घर था। उनकी 2-3 बेटियाँ थीं और ये लोग पढ़े लिखे और महज़ब लगते थे। डेरा गाजी खां में क़याम के दौरान सुबह शाम मुख्तलिफ़ घरों में पुरतकल्लुफ़ दावतें होती थीं। ये सारे लोग कैथल ज़िला करनाल के कसाब बरादरी से ताल्लुक़ रखते थे, जिन्होंने पाकिस्तान आकर मुख्तलिफ़ पेशे अख्तियार कर लिए थे और शेख कुरैशी कहलाने लग गए थे। उनके घरों में गोश्त के सालों के तमाम ही अक़साम बेहद लजीज होती थीं। मौसमी फल, आम, खुबानियाँ, आलू बुखारे और खरबूजे आला किस्म के पेश किए जाते थे। उन ज़मानों में अक्सर लोगों के घरों में रेफ्रिजरेटर नहीं होते थे, इसलिए फल अमूमन बर्फ़ में लगाकर ठंडे किए जाते थे। बाज़ार में कश्मीरी नाम के एक शख्स की बोतलों और पानी की दुकान थी। मैं हर रोज़ शाम को वहाँ जाता था। वो मुझे कैनेडा ड्राई की एक बोतल लाजमी पिलाया करते थे। इन सब मज़ों के अलावा सबसे बड़ा मज़ा आज़ादी थी। अलीपुर में चूँकि हम मगरिब से पहले ही घर आ जाया करते थे, लेकिन यहाँ रात गहरे हमें पूछने वाला कोई नहीं होता था। हम बूढ़े, मुद्दे और लालू के साथ गलियों में घूमते थे, दौड़ते थे और तकरीबन हर रात ही कोई ना कोई फ़िल्म देखने ज़रूर जाया करते थे। मुझे वहाँ के सिनेमा घरों के नाम अब तक याद हैं, कहकशां और नाज। ये दोनों शहर के आखिरी सिरे पर वाक़ थे और ओपन एयर थे। एक सिनेमा घर शहर के अंदर था और बंद सिनेमा हॉल था, उसका नाम मुझे याद नहीं रहा। तब हिंदुस्तान की फ़िल्में भी दिखाई जाती थीं, जिनमें से एक जिसका नाम याद रहा वो आब हयात थी। इसके अलावा वहाँ मैंने बहुत सी पाकिस्तानी फ़िल्में भी देखी। सबीहा की कनीज़ याद है और कमाल की एक रंगीन फ़िल्म भी थी। जब हम लोग फ़िल्म देखने जाते थे तो नाना चौक में बिछाई अपनी चारपाई पर करवट लेकर कहा करते, छोरो मंडवे न जाना, और बूढ़े या मुद्दे में से कोई उन्हें तसल्ली कर देता था कि अगर जाते हम मंडवे ही थे। ये लड़के बिलखसूस भूरा बेहद शरारती बल्कि गुंडा था। वापसी पे गलियों में सोए हुए लोगों की चारपाइयाँ उलट कर भाग जाता और इसी किस्म की दूसरी शरारतें आमतौर पर ही की जाती थीं। और रात गए जब हम लौटते थे तो नाना जी खराटे भर रहे होते थे और अगली रात को उनका फिर वही फ़िक्रा गूंजता, छोरो मंडवे ना जाना, और फिर से हम मंडवे ही चले जाते थे। 1-2 माह की आज़ादी हमारी साल भर की पाबंदियों का मदावा कर देती थी। वापसी पर मुरमुरों, मीठी गोलियों, बिस्कुटों, खीलों, पताशों और मिठाई की बोरियों के अलावा घर भर के लिए कपड़े, दर्जनों कपड़ों के जोड़ों से लदे फदे हम घर लौटा करते थे। लोग रुखसी करते हुए सभी सौगातें वालदा को एक तो इसलिए दिया करते थे कि उनके साबिक शहर की बेटी थीं, और इसकी दूसरी अहम वजह मेरे नाना की मजहबी हैसियत के तवज्जुह से अक़ीदतमंदी का अंसर होता था।
मुझे ये पीरों का सा किरदार कतई नहीं पाता था। और फिर हमारी वालदा ही हमें एक कहानी सुनाती थी जिसमें गिदड़ी के बच्चे आवाज़ लगाते हैं पिदराम सुल्तान बूद, और उनकी माँ कहती है तुराची, यानी तुम खुद कौन हो। मैंने छठी सातवीं में पहुँचते ही वालदा से डेरा गाजी खान जाकर सौगातें लाने पर बहस शुरू कर दी थी। मेरी गुफ्तगू दलील पर मबनी होती थी, इसलिए उन्होंने बहानों से वहाँ जाना ही तर्क कर दिया था, क्योंकि जाकर सौगातें वसूल करने से इनकार करना मुमकिन नहीं था। वैसे कुली तौर पर यह भी नहीं था कि सिर्फ वालदा ही डीजी खान जाया करती थी। एक दो बार मासी हमीदा भी अपने बच्चों से नाराज़ होकर अलीपुर आ बैठी थी। उनको जाते हुए बेटियों के जहेज की तरह ही सामान देकर हमने रुखसत किया था।